Good morning, students. I am Varun Goyal from Raikot Public School, Raikot. Today we are going to discuss class 9th topic polynomial exercise 2.5 NCERT. So students, in the previous video, as you all know, from 2.5 exercise we will complete 4 questions. So afterwards, now let us see the fifth one. So this question is, we have to factorize this statement 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy plus 24yz minus 16xz ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1 2 3 ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, x y ਐਂਡ z। ਦੇਖੋ ਆਹ ਟਰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜੋ ਹੈ 2ab plus 2bc plus 2ca कुछ ऐदा दी आइडेंटिटी नहीं लग रही है अपन को, 2ab 2bc 2ca। सो ये आइडेंटिटी जो इधर लग रही है अपन ये आइडेंटिटी है कि नहीं, a plus b plus c होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आइडेंटिटी सी अपने को a plus b plus c दे होल स्क्वायर की। हुण अपना राजे काम की है, हुण आपां काम मेन करना की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਇਡੈਂटिटी ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 2x ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस 9y स्क्वायर में लिखूंगा 3y होल स्क्वायर प्लस 16z ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇੱਥੇ 4z होल स्क्वायर। ठीक है जी, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ, ਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 12xy, ਇੱਥੇ ਪਲਸ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਲਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋਣ x ਤੇ y, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। दैट मीन्स ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, सो 12xy ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਜੋ 2 ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। a ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ a ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2x, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ b ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 3y। ਇਸ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ a ਤੇ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 24yz ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ x ਤੇ y ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੀ ਵਨ ਟਰਮ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ y ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, z। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ z ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ 2 4 6 8 ਵਾਟਐਵਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਆ ਇੱਕ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ bc, bc ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਰ b ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਰ c। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3y into minus 4z। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4z ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਆਇਡੈਂटिटी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, z ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ 2ce, लास्ट टर्म होती है ce, xz है ना, x की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है, z की वैल्यू कितनी है -4z। तो ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2x into -4z। हाँ जी भाई, इतने तक कोई डाउट हो?
कोई क्लैरिफिकेशन आई थिंक सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हुणे देखो ध्यान नाल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही टर्म्स बन गए ना। तो ये हुंदा की अपने कोले इट मस्ट बी इक्वल्स टू a प्लस b। a कितनी है अपनी इस टाइम 2x। इतने ना आप ब्रैकेट चेंज कर देंगे, ਉਹਦਾ रीजन भी दसूंगा। a कितनी है 2x प्लस b कितनी है अपनी 3y प्लस c इज माइनस ऑफ 4z। तो ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस। देखो इतने हम जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के कल्ले के उपर 2 नहीं है, ये जो 2 है ये स्क्वायर ब्रैकेट के उपर, मेरी गल समझ रहे हो ना, ये उपर 2 नहीं है, 2 पूरी की पूरी ब्रैकेट के उपर आ करके माइनस जो है इतने मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस माइनस। सो आई राइट हियर माइनस 4z एंड इट्स होल पावर 2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ your first part। इत्थे आके थोड़ा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता वा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 द सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट दी हुई है, आपां इहनूं आपां फैक्टराइज करना है। राजे देखो पहला आपां फोकस करांगे स्क्वायर वाली टर्म से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ, सो सारिਆਂ ने ध्यान नाल सुनना वा। स्किप करके किसी ने वीडियो नहीं देखनी बेटा, तुसीं वीडियो नूं प्रॉपर देखोगे तुहानूं कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलूगा। ये ना सोचा करो भी सानू आ क्वेश्चन आंदा ही है असीं अपने आप कर ही लवांगे। आई नो यू हैव टू डू, तुसीं कर लोगे, बट तुसीं करना की है राजे, मेरी गल ध्यान नाल सुनो। तुसीं इस वीडियो नूं प्रॉपर तरीके नाल देख के सुनना भी हुंदा ताकि तुहानूं नवीं चीज़ों का पता चले। ठीक है, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू पार्ट 2 फिफ्थ क्वेश्चन। हुण देखो राजे फिफ्थ क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट कंटिन्यू करने तो पहला आपां एक चीज़ देखा भी आपां स्क्वायर वाले टर्म्स देखते होंगे। हुण 2 है, 2 नूं मैं लिख सकदा √2 मल्टीप्लाई √2, 2 √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 होंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही है। देखो वाई स्क्वायर, इस बार वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, हम आप उधर ही रखा। नाउ 8 आ गया ना अपने को, लिख सकते हैं 8 का देखो क्राइटेरिया ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना आप 4th 5th क्लास के इदा के क्वेश्चन करते हैं एलसीएम एचसीएफ वाले। आप एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं इतने, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं आप वैसे भी। ये फिर पेयर बनाने होंगे, ठीक है। जोड़ा एक पेयर कंप्लीट हो गया वह कंप्लीट आना होंगे अपने को, जो भी लैंडर अपने को बचता वा वो रूट दे चलने होंगे। यदा मतलब 8 में आप लिख सकते हैं, 8 में आप लिखांगे 2 √2 का स्केयर। हूँ इदा कि लिखा वो भी देखो राजे, जो आप ये वाली टर्म का स्केयर करांगे तो अपने को देखो ये लिख लो 2 का स्केयर दैन √2 का स्केयर। 2 का स्केयर होंगे अपने को 4 √2, जो √2 अपन दिता हुआ वा इहदा जो आप स्केयर करांगे इत्थे भी तो √2 का स्केयर ही है, वो की होंगे वा कंप्लीट 2। सो दैट मीनस इत्थे 2 जो 4 2 8 तो 8 ही बनूंगा जो आप पहला स्केयर सॉल्व करेंगे। हुण गल आउंदी है पॉजिटिव ते नेगेटिव साइन से। देखो आ टर्म दे विच x y इतने नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इन्होंने दोनों चो कोई एक नेगेटिव है, ठीक है। वो केड़ा वो देखते हैं हम इतने y ते z है पर टर्म पॉजिटिव है। दैट मीनस की रीजन हो सकता या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या फिर की होगा दोनों पॉजिटिव होंगे, ताकि पॉजिटिव साइन आया। इतने आके देखते हैं आप तो इतने z है तो x है इतने नेगेटिव है, इन्ना मतलब इन्होंने दोनों के विचों भी एक की है, इन्होंने दोनों चो एक की अपने को नेगेटिव है। सो इतने भी x है इतने नेगेटिव साइन है, ये भी x है इतने भी नेगेटिव साइन है। इसका मतलब जे आप सिंपल तरीके नाल सोचिए तो आप x को नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है ना। x आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सो आप की करांगे एक सिंपल तरीका इत्थे लिखांगे √2x। पहली गल तो यह होगा √2x का स्केयर, ठीक है जी। हुण क्योंकि x वाली टर्म जिथे भी प्रेजेंट आ उत्थे नेगेटिव साइन अपने को आ रहा हो राजे, तुसीं ये जिहड़ा नेगेटिव साइन है जरूरी नहीं है कि x नाल लेना, तुसीं किसी भी टर्म नाल ले सकते हो। देख सकते हो इहदे चों भी होर टर्म y नाल जे इत्थे लओगे नेगेटिव साइन तो तुहानूं z भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। y z दोनों नेगेटिव ही ले सकते हो, कल्ला x नेगेटिव लेके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज अप टू यू, बट मैं तुहानूं सिंपल तरीके नाल करवा रहा हूं। इत्थे है कि नेगेटिव साइन, नेगेटिव की पावर ईवन नंबर होगी तो नेगेटिव कैन बी चेंज इन पॉजिटिव नंबर, ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा। सो नाउ लेट अस सी आफ्टरवर्ड्स प्लस y² इत्थे क्लियर है ना। इत्थे देखो इत्थे 8 इत्थे आ जाएगा प्लस 2 √2
नाल z लिख लेने इहदा होल स्केयर। इत्थे तक क्लीयर हो गया? हाँ जी। इस तो बाद देखो हुण आपां चलदे हां नैगेटिव टर्म। इत्थे साइन आपां प्लस का यूज करांगे क्योंकि आइडेंटिटी जो मैं इहदे फर्स्ट पार्ट च लिखी सी वो सारी प्लस दे विच आ रही है ना अपने कोल। प्लस अपने कोल हुंदी है आइडेंटिटी 2 फिर वो हुंदा a थोड़ी a वाली है माइनस अंडर रूट 2x ते b कितनी है थोड़ी जो आ अंदर ही टर्म है स्क्वायर आपां इत्थे बाहर लिख लेने डोंट बी कंफ्यूज हियर। ठीक है इत्थे लिख लो प्लस 2 bc मतलब एक b वाली टर्म लिखनी है c वाली लिखनी है। देखो दोनों ही पॉजिटिव ने इस टाइम अपने को b हैगी अपने को y ते c जो अपने को हैगी वो हैगी अपने को 2 अंडर रूट 2z। उस तो बाद लास्ट टाइम अपने को होगी प्लस 2ca c कितनी है राजे अपने को c हैगी अपने को 2 अंडर रूट 2z तो a जो अपने को हैगी वो हैगी माइनस अंडर रूट 2x। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਟਰਮਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੁਆਇਰ plus b ਸਕੁਆਇਰ plus c ਸਕੁਆਇਰ plus 2ab plus 2bc plus 2ca। आई होप सो इतना तो क्लियर हो गया। सो एक आइडेंटिटी की बन चुकी है अपने कोले a plus b plus 2 अंडर रूट 2zc ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ होल स्केयर। सो हियर योर सेकंड पार्ट इज आल्सो कंप्लीटेड। ਇਹਦਾ और बाकी आंसर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन अंडर रूट 2x माइनस y माइनस 2 अंडर रूट 2z। ਜੇ ਤੁਸੀਂ y ਤੇ z ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਤੇ z ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ then you will get this answer। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ here your question number 5 is completed। now let us continue with our next question। as we can see here cubes in expanded form। ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਸ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਦੀ ਜੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ a plus b cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b। मैं तो दसिया सी भी सेंटर च प्लस आ तो ये आइडेंटिटी है माइनस वाली आइडेंटिटी ये तो डिफरेंट है। सो पहला आप प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो प्लस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सिंपल आ रहा है तुम a फाइंड कर दो थोड़ी की है तो b फाइंड कर दो थोड़ी b की है उस तो बाद वैल्यूज पुट कर दो यू विल गेट योर आंसर। सॉल्यूशन देखो थोड़ी a हैगी आ 3/2x ते थोड़ी b आएगी इतनी 1 बस सिर्फ इन्ना ही काम है। a ਤੇ b मिल गए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੋ a ਦਾ ਕਿਊਬ मतलब 3/2x ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ ਆ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ प्लस b क्यूब प्लस 3a a कितनी है अपनी 3/2x b इनटू है a प्लस b a कितनी है राजे अपने को 3/2x तो b कितनी है 1 मतलब इतना आ जाएगा 3/2x प्लस 1। आफ्टरवर्ड्स ये क्यूब कर दो पहला 3 दा क्यूब 3 3 इज 9 9 3 इज 27 2 दा क्यूब वो हुंदा 8 2 ਨੂੰ 3 बार मल्टीप्लाई करांगे इनटू x क्यूब 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ बेटा अपने को नेगेटिव होवे चाहे 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ 0 ਚਾਹੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਜ਼ 1। ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 3 3 is 9 ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 9/2x क्योंकि 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 3/2x + 1। सो यू कैन लीव योर क्वेश्चन हियर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ क्वेश्चन ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9/2x ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ
सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक इनू उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिखा हुआ है, सो आप भी उदा ही कर लेंगे, नहीं सॉरी दे आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट इनसाइड, कर देंगे आप भी। देखो 27/8 x क्यूब प्लस इनू इतने देखो अब वन आप लास्ट लिख देंगे 9 3 27 2 2 4 x into x square प्लस 9/2x, क्योंकि जो वन ना मल्टीप्लाई करांगे तो 9/2x आ जो वन मैं लेफ्ट किया सी मैं इतने लिख। सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ क्वेश्चन। सो नाउ वी विल सी हेयर x माइनस 2/3y होल क्यूब। ये होल क्यूब का जो अपने को फॉर्मूला वा वो देखते हैं आप। फॉर्मूला देखो राजी हूँ माइनस है तो माइनस वाली जो आइडेंटिटी सी वो मैं तुम्हें इतनी चेंज करके दिखा देना। जिन्ने भी साइन इतने प्लस के सी उन्होंने सारे नेगेटिव कर दो। बाकी सारा काम अपना की है प्रीवियस क्वेश्चन वाला काम ही है, मतलब की है जिन्ने भी अपने को साइन दिया सारे की कितने नेगेटिव, सॉरी इतने भी नेगेटिव लगा देने, ठीक है। सो हूँ देखो हूँ थोड़ी ए वो कितनी आऊगी x एंड b कितनी है थोड़ी, देखो माइनस में आप यूटिलाइज कर लिया था, मतलब हम b जो है वो तुम लिखोगे 2/3y। गल समझ आ गई, मतलब आप b ਨੂੰ नहीं लिखांगे माइनस से नाल नहीं लिखांगे, क्यों क्योंकि आप आइडेंटिटी माइनस वाली ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो हम a ਤੇ b ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ x ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 2/3 ਦਾ ਕਿਊਬ 2/3y ਸੌਰੀ y ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3 a ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਤੇ b ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2/3y। इनटू की अपने को a माइनस b, a कितनी है अपने को x, b कितनी है अपने को 2/3 इतने तक क्लियर हो गया। सो हमने इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। x क्यूब तो x क्यूब ही होता है, सो वो तो ओमेगा आ चुका अपने को x क्यूब माइनस इतने कितना होगा अपने को 8/27 y क्यूब, ठीक है जी। इतने देखो आ 3 नाल 3 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई दे विच सी, तो माइनस की रह गया अपने को 2xy, ओके। तो ब्रैकेट से अपने को की है x minus 2/3y। So you can leave your question here and you can multiply only this term inside. So multiply करके भी लिख लेते हैं हम, it will be x cube minus 8/27 y cube minus 2x square y minus into minus plus 2 2s the 4/3 xy square. So you can leave your question here also. So students आज आप दो क्वेश्चन किए इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो तुहानू क्लीयर हो गए होंगे, समझ लग गए होने क्वेश्चंस, ठीक है राजी। इन्हां दी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ लर्न करना शुरू करो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।